and applaud everyone, our panelists and participants, for the zeal to share and passion to learn with Samurja. Samurja, the sum of creative energies. Here is a small video about Samurja. Samurja Educational Society, established in the year 1991, has completed its gratifying journey of 3 decades. The society was conceptualized with the objective of educating children and preparing them to be morally upright and vocationally independent. Ever since its inception, the society has continued to take tiny steps forward, redesigning the educational fabric in all possible ways through various educational activities, besides conducting social outreach programs like the Girl Next Door and the Charity War. Samurja is constantly striving to bring together some of the most ignited minds in the field of education to introduce change in the educational fabric of the nation by providing educational vision, empowering educators, inspiring learners, and elevating various organizations through training sessions, panel discussions, talk shows, conferences, and symposiums. The society has also conceptualized and published periodicals and magazines for students and teachers. Samurja continues to explore new domains, trends, and landscapes to enrich the educators across the country by equipping them to resolve the academic challenges in their classroom to make teaching and learning more joyous and engaging. It also helps educators realize their vision and collaborate with national and international educators to have sustainable societies and a happy nation, thus redefining the paradigms of Indian education. Jai Hind, Namaskar. Everyone loves stories, maybe a fable, fiction, or non-fiction. Stories serve so many purposes in our lives. Literacy begins with stories which others tell us or we tell ourselves. They are instrumental in cognitive, social, and emotional development. Telling stories is one of the most influential means that leaders in all domains have adopted to connect, teach, and inspire. We use stories in classroom for a number of reasons. The first being to grab students' attention. Stories take children on a journey that helps them learn meaning of language. And the language is perceived largely through sounds. Many people believe that it is linked to a primitive human instinct. It's possible to ignore a word on a page, but human brain is hardwired to pay attention to sounds, which in many ways provide vital information to survive or to save ourselves. A caveman who ignored the sound of a lion did so at his own peril by taking the risk of his life. Stories are also important because they allow us to stimulate intense experiences without actually having to live through them. Children experience things as if they really happen to them. They learn right and wrong. They learn to put themselves in others' shoes. Stories also help them in developing social skills. They teach them lessons that help to survive and make meaningful decisions in life. Also, stories have the ability to support children learn about others, to understand and empathize for people and their situations. Whether we actually know the individuals or not, hearing their stories evoke feelings. Learning to relate to others and empathize with them is so important in developing social skills. Stories are much more than reading or listening. Oral stories are particularly important. One crucial ingredient of stories is the emotional contrast, expressing happy, sad,
angry, astonished, empathy feelings. These are the basic platforms that convey important values to our children. Learning values help children understand and respond to life situation and realize them whenever needed in life. Just by saying this is right or that is wrong, besides do's and don't list by teachers or parents, is least effective. The idea or messages are perceived quickly and impactfully through stories. CBSE has also recognized storytelling as an important pedagogical approach. Storytelling is an art. Can this art be learned? How to convey important concepts, values, messages through stories? How to learn important lessons in different subjects? To help us explore the answers of our queries, we have with us highly modest, grounded, subtle, an author, podcaster, a storyteller, and who is crystal clear about her ideas, philosophy, and principles. We have with us Mrs. Shraddha Pandey. I request Shraddha ma'am to please extend the verbal greeting. Welcome, Shraddha ma'am. Thank you मैम। सबसे पहले तो मैं समूर्जा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। प्रेसिडेंट समूर्जा, मुक्ता मैम, आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे साथ डॉक्टर हसीजा हैं, डायरेक्टर इंद्रप्रस्थ स्कूल, सर आपका बहुत बहुत आभार। आप यहाँ आए और आपके आने से मेरा हौसला बढ़ेगा। हमारे साथ मिस्टर पांडे भी हैं, पांडे सर, निदेशक एल्कॉन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के, सर आपके रहने से भी मेरा हौसला बढ़ेगा। मैंने कहीं गुड इवनिंग लिखा हुआ देखा था डॉक्टर हरीश का, पर मुझे भी दिख नहीं रहे हैं। अगर हरीश सर पैनलिस्ट अटेंडीज में हो तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, और आभार भी है कि आप यहाँ हैं। और अगर नहीं है, शायद किसी कारण से आप नहीं ज्वाइन कर पाए, तो फिर भी आपका नाम और आपके आने की सूचना से ही मेरी हिम्मत बढ़ गई। तो मुक्ता मैम, अब मैं जो कुछ कहना चाहती थी वो आपने कह दिया। सबका बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। आपने भी मेरा काम कम कर दिया है। We also have with us our mentor Dr. Ashok Pandey, Director Alcon Group of Schools, the most popular leader who has carved his niche nationally and internationally. He is always ready with his novel ideas and ever ready to extend his support to anybody and everybody. Welcome, Dr. Pandey. Dr. Pandey, please extend the verbal greeting. Thank you, Mukta ji. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much for your kind words. We also have with us another mentor, Dr. Rajesh Hasija, Director Indraprastha Group of Schools, a leader par excellence and high-speed multitasker. He is always moving. Even at this moment, he is moving. I don't know whether he sleeps or not. He is always moving. I would like to ask a question. Thank you, moving Dr. with speed is really important, sir? Thank you, Dr. Mukta. Feel fortunate to be part of this group and looking forward to listen to Dr. Shraddha Pandey and learn something. Welcome, sir. Dr. Harish Chaudhary hasn't joined us, I think, yeah. So, and welcome to all the participants. Without further delay, before I start the session formally, Shraddha ma'am, how did you get this inspiration? Monica, just wait for a while. How did you get this inspiration of, storytelling? ये thought कहाँ से आया आपके पास? स्टोरी टेलिंग, मुक्ता मैम, आपने बड़ा बहुत बड़ा सीक्रेट पूछा है। स्टोरी टेलिंग से पहले स्टोरी राइटिंग आया, और उस स्टोरी राइटिंग के पीछे जो है डॉक्टर अशोक पांडे हैं। जब मैं कहीं जाती थी तो ये कहा करते थे सबसे, ये मेरी वाइफ है, ये लिखती है, और मैं लिखती नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये तो कुछ ना कुछ सीड पड़ रहा है मेरे अंदर, और वो सीड पढ़ते 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 एक दिन सोचा मैंने, क्यों ना लिख ही लेते हैं, चलो लिख के भी देख लेते हैं। तो जब लिख लिया तो फिर अब दिल किया कि नहीं, अब तो लोगों तक पहुंचना है। तो लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि अपनी आवाज से लोगों तक पहुंचो। तो पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दिया, और बच्चों के दिल तक पहुंचने के लिए फिर उनके लिए एजुकेशनल यूट्यूब पे मैंने लेसन बनाना शुरू कर दिया। दिस इज माय जर्नी, एंड डॉक्टर अशोक पांडे इज
Big Beautiful. support. Beautiful, beautiful. I request Monica ma'am to please welcome ma'am with a musical note and introduce ma'am with the participants. स्वागत है आप सभी का श्रद्धा पांडे YouTube चैनल पे। आज जो मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ, उस कविता का शीर्षक है अच्छा होता है। दर्द जब हद से बढ़ जाए, आंसू पलकों से ढल जाए, तब रो लेना अच्छा होता है। बहुत सहा लोगों का तुमने, अपने सपनों की गांठें खोलो, कितनी आहें दफन मिलेंगी, अब उनमें कुछ रंग भी खोलो। देकर बीती उम्र की दुहाई, बहुत मिलेंगे हंसने वाले, सुनी अनसुनी करके उनकी, अपनी सुन लेना अच्छा होता है। माना उम्र बीत गई सारी, पर जो बाकी है वह क्या कम है। मन भर जी लेने को अब भी देखो कितना दम कम है। किसने राहों से कांटे चुने, किसने घावों को सहलाया है, अपनी राहें फूल बुझाने को कुछ अनदेखा कर देना अच्छा होता है। अरमानों की गिरवी पर तेरे शीश महल यह खड़ा हुआ, हर कोना आबाद रहे यह सोचकर कितना सहा यहाँ। स्मृतियों की स्लेट है कच्ची, स्मृतियों की स्लेट है कच्ची, किसने किसको याद किया, कहीं नाम तुम्हारा गढ़ा हो, यह जतला देना अच्छा होता है। पंख दिए थे जिन पखेरु को, उड़ जाएंगे एक एक कर, तिनका दाब कर लौटो जब, निराश न होना खाली पाकर। आया गया लगा रहता है, आया गया लगा रहता है, जीवन नाम इसी का है। कोई पूछे परिचय उससे पहले, पहचान बना लेना अच्छा होता है। कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्यों सहती हो, किसे है परवाह कि जीती या मरती हो। सबके अपने किस्से हैं, सबके अपने किस्से हैं, सबके अपने हिस्से हैं, सबकी अपनी राहें हैं, सबकी अपनी मंजिल है। आसान नहीं जीवन की डगर, लोगों की उंगली उठे अगर, अपनी राह बनाकर उस पर चल देना अच्छा होता है, चल देना अच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Kriti. Shraddha ma'am, I would like to share that this intro video, usually it is ready a day before. And there was a discussion between Kriti and me. She was sharing. I said, ma'am, khud sunayengi to acha lagega. But I really appreciate, Shraddha ma'am, aapki to tareef hai hi hai. Thank you, Kriti, for adding this in the intro video.
Thank you so much. So, welcome Shraddha ma'am once again. And let's start the session. Thank you. कहानियों के बीच में सवाल पूछना तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप जब क्लास में पढ़ाती थी तो पढ़ाने में स्टोरीज ज्यादा ऐड करती थी या लेसन्स को लेसन प्लान की तरह पढ़ाया जाता था या लेसन प्लान स्टोरी होता था? किस तरीके से आप काम करती थी? मेरा ज्यादातर तो लेसन जो होता था वो स्टोरी होती थी और क्लास में मस्ती होती थी। कभी कोई बच्चा कोई चरित्र बन रहा, कोई कैरेक्टर बन रहा, कभी मैं कैरेक्टर बनती थी। कई बार तो बच्चों ने, मैंने कैरेक्टर घूंघट काट करके कुछ मिठाई वाला एक लेसन है वो किया, तो बच्चों ने उसकी क्लिपिंग भी निकाल ली, वीडियो भी निकाल ली। तो मुझे क्लास में पूरी जीवंतता चाहिए। जब हमारी फिजिकल क्लास होती थी तो वहां पे भी हमारी जो है कुछ ना कुछ एक्शन चलता था, और जब ऑनलाइन क्लासेस होनी शुरू हो गई तो मैं कुछ भी हो जाए मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं सिर्फ ऑर्डर देती रहूं, बच्चे उसको फॉलो करते रहे। और कहानी में मुझे बहुत मजा आता था, शुरू से ही कहानियों में मुझे मजा आता रहा है। और अभी आपने मुझसे पूछा था ना, तो वो पहचान बना लेना अच्छा होता है, तो ये पहचान बनाने की वो जो ललक थी ना, उसने मुझे जो है कहानी लिखने और पढ़ने और पॉडकास्ट बनाने के लिए प्रेरित भी किया। आज हमारे साथ जितने भी टीचर्स जुड़े हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? किस तरीके से सब्जेक्ट के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को स्टोरी के माध्यम से आसानी से बताया जा सकता है? एक अजीब सा चलन है, अंग्रेजों के टाइम ऐसा कहा जाता था या ऐसा एक फीड किया जाता था कि नंबर 1 जो गोरे हैं वो इंटेलिजेंट है, नंबर 2 जो अंग्रेजी बोलते हैं वो इंटेलिजेंट है। तो कहीं आज भी उसकी झलक कहीं कहीं देखने को मिलती है कि हिंदी और संस्कृत जो कई भाषाओं की जननी है, उसको सीखने में, उसको समझने में, उसको याद रखने में एक दिक्कत आती है, जिसमें मैं खुद को भी इंक्लूड करती। अच्छा लगता है, एक आर्य परिवार होने की वजह से बहुत सारे जो श्लोक हैं बोल पाते हैं। कुछ जो बचपन में याद किए थे याद रहते हैं, कुछ याद नहीं रहते। आप कुछ हमें ट्रिक्स बताइए किस तरीके से हम अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को, इन टोटलिटी टीचिंग को किस तरीके से स्टोरी के माध्यम से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। ओवर टू श्रद्धा मैम प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। मैं इसको सिर्फ बातों से बताने से पहले या बताने की अपेक्षा हमारे साथ जितने भी मित्रगण जुड़े हैं, काफी लोग जुड़े हैं, स्कूल देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आपकी उत्सुकता का भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, आप सभी लोग जुड़े। और मैम ने अभी जो वो बातें मुझसे पूछी, उसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें और बताएं और जाने तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी, उसके जरिए शायद मैं अपनी बात ज्यादा अच्छी तरह से कह सकूंगी और आप तक ज्यादा अच्छा पहुंच सकूंगी। लेकिन जो भी होगा वो ब्लेंडेड होगा, मिक्स होगा, और ज्यादा लेक्चर में नहीं करूंगी, और ना ही मैं इसमें ज्यादा विश्वास करती हूँ कि जो है बहुत टेक्निकल में नहीं जाना चाहूंगी। क्यों नहीं जाना चाहूंगी उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो स्टोरी टेलिंग पेडागोजिकल अप्रोच में आप सभी का स्वागत है। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो शिक्षण पद्धति का जो माध्यम है वो कहानी, आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। और मैं आपको लेके चलना चाहती हूँ कहानियों की दुनिया में, और इस कहानियों की दुनिया का सफर कितना निराला होगा इसके गवाह आज आप लोग बनेंगे। मैम ने बहुत सारी बातें कह दी, तो मैं अपनी उसमें दोहराना नहीं चाहती हूँ। ये बिल्कुल सही कि बच्चे जो है सहयोग सीखते हैं, कोलैबोरेशन, कंट्रीब्यूशन, एम्पैथी, उनकी जो ग्रुप स्किल, बहुत सारी बातें मैम ने जो कही हैं, उनकी जगह पे हम आपको कहानियों की दुनिया के सफर में ले चलते हैं। तो सबसे पहले जब हम कभी भी लेसन प्लान बनाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, तो हमारे मन में एक बात होती है, हम क्यों जा रहे हैं,
वो हमारा उद्देश्य होता है। पाठ पढ़ाने से पहले भी हमारा एक उद्देश्य और एक एम होगा। हमारे साथ बहुत सारे इंग्लिश के टीचर्स भी जुड़े होंगे। मेरे ख्याल से लिटरेचर पढ़ाने का तरीका दोनों में एक है। चूंकि हिंदी भाषा मेरी अपनी भाषा है और हिंदी भाषा में मैंने हमेशा पढ़ाया है और मैं इसमें ज्यादा सहज हूँ, इसलिए मैं हिंदी भाषा में बात कर रही हूँ। मुझे कोई इसमें अंग्रेजी भाषा से कोई भी विरोध नहीं है और आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। इन बिटवीन आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो वेरेवर यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी। तो आज हमारे इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि सारे टीचर जुड़े हैं, हम अपने कक्षा को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कहानी और जो हमारा सिलेबस है, अभी जैसे मैम ने कहा था, इन दोनों के बीच में कैसे हम एक बैलेंस, एक संतुलन बना सकते हैं। आज हमारी बातचीत का उद्देश्य सिर्फ यही है। और जब हम कहानी की बात करते हैं तो कहानी क्या है ये हमारे मन में आता है। जब हम कहानी की बात करते हैं तो लोग उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे चले जाते हैं, कहानी गल्प है और वो बंगाल से शुरू हुई थी। हम वहां नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कहानी का एक इंट्रोडक्शन होता है, एक उसका मध्यम होता है जिसको बॉडी कहते हैं, फिर एंड होता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, आप इससे सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, अपनी दोनों बातें आप कहिएगा। मेरा ये मानना है कहानी वो होती जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंच जाती है। और मैं इस बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी कोई कहानी लिखे तो कहानी लिखे नहीं, कहानी देखे। जब कहानी को अपने मन की आंखों से हम देखते हैं तो वो कहानी हमारे सामने घटना जो है घटती है, और तब हम जब लिखते हैं तो पढ़ने वाले के दिल से सीधे के सीधे जुड़ जाते हैं। तो मेरी परिभाषा, मेरा मानना ये है कि कहानी वो होती है जो, जरूरी नहीं है, हो सकता है मैं ये भी कह दूं कि मैं जो हूँ जा रही थी, निकल रही थी घर से और मेरे पैर में चोट लग गई और मैं लड़खड़ाते लड़खड़ाते पास वाली दुकान पे गई और वहां एक मोची भैया बैठा था। उसने कहा क्या हुआ बहन जी? मैंने कहा भैया मेरे चप्पल टूट गई। उसने कहा कोई बात नहीं, बैठो कुर्सी पे बैठ जाओ। मैं कुर्सी पे बैठ गई और उसने मेरी चप्पल सिल दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने जब पैसा देना चाहा तो उसने कहा नहीं नहीं बहन जी मैं पैसा नहीं लूंगा। तो मेरे दिल को बड़ा अच्छा लगा कि देखो ये जो व्यक्ति पैसे के लिए, थोड़े थोड़े पैसे के लिए काम कर रहा है, फिर भी ये देखो मेरी दर्द को समझा, मुझसे पैसा नहीं लिया। मेरे लिए ये भी कहानी, इसमें न संघर्ष है, न दुख है, न सुख है, कहानी है। तो कहानी का मतलब ये होता है कह देना, और हम सब लोग कहानी कहते हैं। आप देखिए जब हम किसी की बात, तुम्हें पता है वो वाली जो औरत है ना, अरे या वो वाली जो टीचर है, अरे भैया उससे एक कॉपी मांगो ना, तो वो कॉपी देने की जगह 50 बहाने करती है। तो ये जो तरीका हम अपना रहे हैं ये भी कहानी है। पर हमने सोचा कि कहानी का एक चौकोर फ्रेम है और उसी फ्रेम के अंदर कहानी होती है। कहानी ऐसी नहीं होती। कहानी कह देने का अंदाज है और हर व्यक्ति के पास है। और जो बच्चा होता है वो तो सबसे बड़ा कहानीकार होता है। वो कॉपी नहीं लेके आएगा, ऐसे झूठ बोलेगा, ऐसे झूठ बोलेगा कि हमें विश्वास कर लेना पड़ेगा। और अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो वो ऐसे आंसू बहाएगा कि हमें दया आ जाएगी। ये उसकी कहानी कहने का अंदाज है कि वो अपनी बात कितने सुंदर तरीके से कह रहा है। तो मेरे हिसाब से कहानी क्या है? कह देने का तरीका, ऐसा तरीका जो हमारे दिल से निकले और सुनने वाले, पढ़ने वाले के दिल तक पहुंच जाए। इसको विस्तार न देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, वरना समय हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ आए क्यों? जरूर सारे लोग इतना समय लगा करके यहाँ पे अपने आराम को दांव पे लगा कर अगर यहाँ आए हैं तो कोई ना कोई तो कारण है। तो सबसे पहला कारण जो मैंने सोचा है, इसके अलावा यदि आपके दिमाग में कोई बात आए तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि कहानी को पाठ्यक्रम में कैसे शामिल करें, और दूसरा कहानी लिखे कैसे, और कहानी के गुण क्या होते हैं, और तीसरा कहानी की आवश्यकता क्या है, उसके अंग क्या है। तो मैं अंग पर नहीं जाऊंगी आज, हाँ आवश्यकता पर जरूर बात करूंगी। अंग को मैंने बहुत छोटे में अभी आपके सामने आई हैव जस्ट टच्ड, और अगर किसी को कोई विशेष रूप से जानकारी हासिल करनी होगी तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। तो अब कहानी की आवश्यकता पे हम बात कर लें। पहले कहानी जो होती है वो सस्टेनेबल होती है। अभी मुक्ता मैम ने कहा बच्चा बहुत देर तक उसको रिटेन कर सकता है। आप देखिए बाबा आदम जमाने से जो कहानी चली आ रही है,
वो व्रत उपवास की कहानी आज भी वैसी की वैसी चली आ रही, सिर्फ सुनाने वाले का तरीका बदल गया है या फिर उसमें थोड़ी सी चीज निकल गई है, उसकी जिस्ट, उसकी आत्मा वही है। तो कहानी कभी बदलती नहीं। और अगर बच्चे ने किसी भी पाठ को कहानी के रूप में सुन लिया और स्वीकार कर लिया तो वो उसके दिमाग में हमेशा रहेगी। हम आपके सामने अभी 2-4 उसका उदाहरण भी दिखाएंगे। फिर याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। मुझे अभी तक याद है कि जो बचपन में मैंने कहानियां सुनी थी, मैं एक कहानी का जिक्र हमेशा करती हूँ कि मेरी बड़ी अम्मा कहानी सुनाती थी और जब वो चर्चा करती थी तो कहती थी, बेटा जब राक्षस चला, ने राक्षस की बड़ी बड़ी मूंछ थी, अब हमारे अंदर कल्पना आ गई मूंछ कैसे, और उसके 2 सींग थी। अब सींग हमने बड़ी छोटी अपने अपने कल्पना के हिसाब से सोचते थे। फिर वो कहती थी जब वो चलता था तो जमीन हिलती थी, डगर मगर डगर मगर। तो मुझे वो चीज क्यों याद है, क्योंकि वो कहानी के रूप में मैंने इसको, वो पूरी कहानी, मैं सब कुछ भूल सकती पर वो कहानी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो कहानी बहुत हमने सुनी और उसमें इतनी अपनी कल्पना को विस्तार दिया, वो आकाश की ऊंचाई तक पहुंच गई। तो याद करना आसान हो जाता है। और हम आपको एक सिलेबस में से भी एक कहानी यहाँ दिखाएंगे। और रोचक तो वो होती है, कितनी रोचक हो सकती है ये टीचर के ऊपर, माँ पिता के ऊपर, सुनाने वाले बड़ी माँ बड़े पिताजी या ताई ताऊ या दादी दादा नानी नाना, उनके ऊपर निर्भर करता है। पर कहानी सुनने के बाद तो बच्चा जितना खुश होता है, हम खुद खुश होते हैं, हम तरह तरह के ऑडियो बुक लगा करके ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कहानी सुनने से मन को एक शांति मिलती है और सुकून मिलता है, हम थोड़ी देर के सब कुछ भूल जाते हैं। तो बच्चा तो हम तो चाहते हैं बच्चा भूल जाए और सब कुछ सीख जाए। तो ये है कहानी की आवश्यकता। वह देगा अगर हम उसे कहानी सुनाएंगे। और कहानी के बीच में कई शाखाएं निकलती हैं। हम जैसे बोलते हैं, और तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ, तो वो बच्चा थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर वो कभी कभी तो जवाब देगा नहीं ये हुआ, तो कहते हाँ ये भी हो सकता है, हम ऐसे कहानी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो बात है ना, वो सिर्फ कहानी में निकलती है, पाठ में नहीं निकल सकती है, सिर्फ कहानी में निकल सकती है। और समय अवधि, हमने ज्यादातर देखा है, लोग कहते हैं कि आज से 100 साल पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है, 1000 साल पहले की बात है, कह सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर अगर हम कहानी ने सुनाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया, बेटा तुम्हें पता है डायनासोर ने अपने बच्चे को छिपा करके ले जाके झाड़ी के पीछे रखा ताकि कोई देख ना ले, क्योंकि उसको पता था चारों तरफ दुश्मन घूम रहे हैं। तो ये अपने आप टाइम पीरियड को बताना शुरू कर देती है और हमको अननेसेसरी कोई चीज नहीं बतानी पड़ती है। तो ये उसकी आवश्यकता है, कहानी की आवश्यकता, क्योंकि इसकी वजह से हम कहानी के साथ हाथ मिला रहे हैं, कहानी के साथ हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम अपने अगले सेगमेंट पे आगे बढ़ते हैं कि अब हमने ये जान लिया कि हाँ भाई कहानी आवश्यक है और कहानी से बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्या कहानी सुनाएं, क्योंकि कभी कभी हम बहुत भारी भरकम कहानी बच्चे को सुनाना शुरू कर देते हैं। बच्चे को आज भी फिक्शन बहुत पसंद है, बच्चे को आज भी जानवरों की कहानी बहुत पसंद है। आप देख लीजिए जितने भी अंग्रेजी के किताबें हैं उनमें फिक्शन कितनी भरी हुई है। बच्चों को फिक्शन बहुत, क्योंकि उसमें उनकी कल्पना की उड़ान बहुत होती। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न उठता है कि क्या और किसके लिए हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या हम बड़ों को सुनाने जा रहे हैं? अगर हम छोटे बच्चे को कहानी सुनाएं और हाँ हूं करके आवाज निकालना शुरू कर दें तरह तरह की, तो वो बच्चा कहेगा ये कौन सी कहानी, क्योंकि आज कक्षा 8वीं 9वीं के बच्चे की अपनी अलग समस्याएं हैं, वो अपनी अलग समस्याओं की कहानी सुनना चाहता है। कक्षा 6-7 का बच्चा अलग, कक्षा फर्स्ट सेकेंड नर्सरी का बच्चा, उसके साथ लॉयन की, मंकी की, तरह तरह की आवाज निकाल के हम कहानी सुनाएंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम किसके लिए कहानी सुनाने जा रहे हैं, क्या बड़ों की, बच्चों की, युवाओं की, या हमारे जो छोटे बच्चे भी युवा की तरफ बढ़ रहे हैं, किशोर हैं, उनकी। और कहानी कैसी होनी चाहिए?
कहानी बच्चे की उम्र के अनुसार होनी चाहिए। यदि उम्र से अधिक की होगी या कम होगी, बच्चा नहीं सुनेगा। और कब सुनाए? तो हमेशा सुना सकते हैं। हम कभी भी कहेंगे बच्चों से कि बच्चा चलो कहानी सुनाते हैं, सब बैठ जाएंगे, हाँ मैम, फिर हम कहते हैं सीधे होके बैठो, तो वो कमर भी सीधे कर लेंगे। अब ध्यान से सुनो, कहानी सुनने के लिए बच्चा मुझे तो हमेशा ही तैयार मिला, और टीचर को। और क्यों सुनाए? क्योंकि उसको कहानी हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो अगर हमारी क्या, किसके लिए, कैसी, कब और क्यों की समस्या सुलझ जाती है, तो हमारे सामने आती है माता पिता के रूप में। माता पिता कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, और वो हमेशा, अभी एक प्रतियोगिता किसी भी विद्यालय में होगी, माता पिता एक दूसरे को फोन करना शुरू कर देंगे, भाई आपके पास कोई कहानी है, आपके पास कोई कहानी है, आपके पास कोई कहानी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हम अपने बच्चे के लिए कैसी कहानी चुने। और वो कहते हैं बच्चे कहानी नहीं सुनते। वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उनके पास जो है बच्चों के हिसाब की कहानी नहीं होती। और सॉरी, और हाँ, ऑडियो बुक, पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं ऑडियो बुक दे सकते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, ऑडियो बुक दे सकते हैं, वीडियो ना दे, क्योंकि हमेशा, अभी ऑलरेडी हमारा बच्चा जो है स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऑडियो बुक इज अ गुड सब्स्टिट्यूट इफ पेरेंट्स आर नॉट एबल टू टेल द स्टोरी। लेकिन वो पहले खुद सुन करके बैठे, देखें कि कहीं उसमें ऐसी चीज तो बच्चा नहीं सुन रहा जो उसके सुनने लायक नहीं है। आज का हमारा सारा फोकस पाठ्यक्रम, जो टीचर्स की समस्या है कि भाई हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें या हम सिर्फ कहानी सुनाएं, और कौन सी कहानी सुनाएं। मेरा पूरा पूरा फोकस आज जो होगा, उद्देश्य हमारा जो है वो यही है। और जो बच्चा है हमारा, वो हमेशा कहानी सुनने के लिए, हर उम्र के बच्चे तैयार रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बच्चे कहानी सुनने के लिए तैयार ना हो। तो जब हमारा बच्चा कहानी सुनने के लिए तैयार है, तो हम कहानी सुनने के लिए क्यों ना तैयार हो। तो मेरे ख्याल से अगर सारे लोग, सारे टीचर्स बच्चे बन जाएं, तो हम अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो हिंदी में मैंने कोशिश की है, मैं आपको भी क्लिपिंग भी दिखाऊंगी, लेकिन प्रायः ये माना जाता है कि व्याकरण बड़ा शुष्क होता है, व्याकरण जो है बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, उसमें बच्चे मजे नहीं लेते हैं। मैं उसको भी कहानी के हिसाब से ही सुनाती हूँ। तो अभी मैंने कल ही लिखी, सोचा कि चलिए लिखते हैं, विशेषण की और सर्वनाम की कहानी, कि विशेषण और सर्वनाम कैसे आपस में बात करते हैं और बच्चा कैसे कहानी जो है सीख जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, थोड़ा सा रिवीजन के लिए जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। एक गुणवाचक, एक संख्यावाचक जो नंबर बताता है, एक परिमाणवाचक जो मेजरमेंट बताता है, एक सार्वनामिक होता है जो सर्वनाम के बाद संज्ञा आता है, और उसके बाद विशेषण की विशेषता संज्ञा की विशेषता बताता है। तो अब इस पूरी चीज को मैंने बहुत छोटे से तरीके में कहानी के रूप में गढ़ा है, तो वो हम सुनाते हैं। हाँ, विशेषण और सर्वनाम, चलो देखते हैं इनके काम। विशेषण के हैं कितने नाम, सब जानेंगे करके व्याकरण को प्रणाम। तो कहानी हमारी शुरू होती है। सर्वनाम बड़बड़ाता हुआ कमरे में घुसरा और सामान पटक कर बोला, चापलूस विशेषण। पीछे से विशेषण भी आ गया, बोला, क्या कहा, क्या कहा, चापलूस विशेषण। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा ना संज्ञा दादा की विशेषता बताते रहते हो। तो क्या हुआ, मेरा काम ही है संज्ञा की विशेषता बताना, और कभी कभी तुम जैसे ना नक्चढ़ों की भी विशेषता बताता हूँ। और देखो, मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। तुम्हें तो पता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे ही तो विशेषण कहते हैं। अब तुम मुझे चापलूस कहो, चमचा कहो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, क्यों फर्क पड़ेगा, तुम तो संज्ञा दादा के साथ हमेशा चिपके रहते हो, चिपकू कहीं के। वाह वाह, क्या बात है, कभी चापलूस, कभी चमचा, कभी चिपकू, धन्यवाद धन्यवाद। विशेषण ने ऐसे कहा। तो सर्वनाम ने कहा, देखो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं, इसलिए तुम दूर चले जाओ भाई। विशेषण ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा, मेरे भाई, इस तरह लड़ाई करने से काम नहीं चलेगा, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सर्वनाम को तो जैसे मौका मिल गया, वो बोला, फिर तुम मेरे साथ मिलकर क्यों नहीं रहते हो, हमेशा संज्ञा दादा की क्यों विशेषता बताते हो, उन्हीं का गुणगान करते हो, उन्हीं का बखान करते हो और गुणवाचक विशेषण बन जाते हो। तो विशेषण ने मुस्कुराते हुए कहा, बस
और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। सर्वनाम ने गुस्से में कहा, तो हाँ सुनो, तुम कभी संज्ञा के नंबर बताते हो, संख्यावाचक बन जाते हो। कभी संज्ञा की मात्रा नापतौल बताते हो तो परिमाणवाचक बन जाते हो, और कहते हो भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं। सब झूठा दिखा करते हो तुम सिर्फ संज्ञा दादा की चापलूसी करते हो बस। तो विशेषण ने सर्वनाम का हाथ प्यार से पकड़ लिया तो सर्वनाम बिदक गया। विशेषण ने कहा, ऐसे नाराज नहीं होते भाई, आओ मेरे पास बैठो। तुमने तो बस मेरे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक रूप के बारे में बताया, पर गुस्से में तुम मेरे चौथे रूप के बारे में तो भूल गए। तो सर्वनाम ने अपने शर्ट की बाजू से अपने आंसू पोंछते हुए विशेषण की तरफ देखा, तो विशेषण ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया और प्यार करते हुए कहा, देखो जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आता है और मैं संज्ञा की विशेषता बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना सर्वनाम, जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आता है और मैं सर्वनाम की विशेषता बताता हूं, तब तो मैं सार्वनामिक विशेषण बनता हूं, तब तो मैं संज्ञामिक विशेषण तो नहीं कहलाता। बस संज्ञामिक विशेषण सुनते सर्वनाम को हंसी आ गई। हंसते हुए बोला, संज्ञामिक विशेषण। संज्ञामिक विशेषण ये क्या होता है, ये तो कोई शब्द ही मैंने नहीं सुना। तो सर्वनाम को हंसते देखकर विशेषण ने उसे गले लगा लिया और बोला, देखो मेरा काम ही संज्ञा की विशेषता बताकर गुणवाचक बनना है, संज्ञा की निश्चित गिनती बताकर निश्चित संख्यावाचक, और गिनती अनिश्चित हो तो अनिश्चित संख्यावाचक, और हाँ जब संज्ञा नापी या तोली जाए तो परिमाणवाचक बनना है। सर्वनाम ने पूछा, अच्छा अगर मात्रा निश्चित ना हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक। और अब ध्यान से सुन, जब संज्ञा दादा अपने प्यारे भाई, उसने जो है प्यार से उसका गला पकड़ते हुए उसकी दाढ़ी छूते हुए कहा, जब संज्ञा दादा बड़े प्यार से सर्वनाम के तुरंत बाद आते हैं और मुझसे अपनी तारीफ करवाते हैं, तब मैं क्या बन जाता हूँ, सार्वनामिक विशेषण बन जाता हूँ। उदाहरण बताऊं, जैसे वह बंदर मोटा है। अब इसमें देखो वह सर्वनाम है, उसके बाद संज्ञा आया और मैं उसकी मोटापे के बारे में बता रहा हूँ, ये तो हुआ ना सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम ने कहा, हाँ लेकिन, अच्छा अब लेकिन कुछ नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो। सर्वनाम ने कहा, लेकिन ना, लेकिन भाई तुम बहुत प्यारे हो, और ये कहकर कहानी हमारी खत्म हो जाती है। तो ये है हमारी एक छोटी सी झलक। लेकिन बहुत बढ़िया। मैं अपने सारे यहाँ पे जो अध्यापक गण है वो कहेंगे कि मैम, हम पाठ में तो हमारे हाथ बंधे होते हैं, हमें पाठ को उसी हिसाब से पढ़ाना होता है जिस हिसाब से पाठ हमें मिला है। तो सच्ची बात है, उसमें हमें ज्यादा, और चूंकि आजकल जो है मल्टी जो है चॉइस वाले क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज को भी बच्चे को दिखाना और बताना पड़ता है। तो मैंने YouTube से छोटी सी क्लिपिंग निकलवाई है और मैं चाहूंगी कि वो क्लिपिंग हमारे जितने भी मित्रगण यहाँ जुड़े हैं वो देखें, और देखें कि उसमें भी हमने थोड़ी सी वैरायटी ली है। हाँ मोनिका, Ma'am, my screen is visible? हाँ Yes. विजिबल है। हाँ आओ बैठो। क्या मैं अंदर आ जाऊं मैम? हाँ आओ बैठो। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को साहिर लुधियानवी की लिखी कविता पढ़ाऊंगी, तो क्या तुम सब तैयार हो? जी मैम, हम तैयार हैं। तो पहले गीत सुन लो, फिर पद्यांशों का भाव समझाऊंगी। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया। फौलादी है
सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, अभी आपने एक सुंदर सा गीत का छोटा सा अंश सुना। अब इस पद्यांश की व्याख्या सुनिए, भाव समझिए। पद्य का अर्थ होता है कविता और अंश का अर्थ होता है उसका छोटा सा हिस्सा। तो इस पद्यांश में भारतीय मजदूर अपने साथियों से कहता है, ऐ साथियों, मेरे काम में अपना हाथ बटा। एक मिनट रुकना यहाँ पर बेटा। तो ये हमने सिर्फ एक कविता की एक झलक ली थी और एक अभी मैंने क्लास 6 का ही थोड़ा सा लिया है और ये क्लास 6 की दूसरी एक लेसन है जो पाठ मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए बनाना। तो उसका भी मैंने बनाया लेसन और उसको यूट्यूब पे डाला है। उसकी छोटी सी क्लिपिंग में दिखाना चाहती हूँ कि पाठ को भी हम रोचक तरीके से बना सकते हैं। उसका छोटा सा ही अंश लेकर मैं आई हूँ। पार नजर के। हाँ, पार नजर के। पर मैम, ये रेखा देश पांडे कौन है? रेखा देश पांडे? रेखा देश पांडे ने बच्चों कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है। अच्छा, तभी उनके नाम के आगे मराठी से हिंदी में अनुवाद लिखा है। बिल्कुल ठीक बच्चों, मंगल ग्रह पर लोग जमीन के अंदर घर बनाकर रहते थे। जमीन के अंदर? भला क्यों? पहले सिलसिलेवार तरीके से कहानी सुनो, फिर तुम स्वयं समझ जाओगे। कहानी में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम छोटू था। छोटू दिखने में कैसा लगता था? हम अपनी कल्पना से सोचते हैं शायद बिल्कुल अलग दिखता हो, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। छोटू की माँ हमेशा छोटू से कहा करती थी, उधर मत जाया करो जिधर पापा जाते हैं। पर पापा तो रोज उधर जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? पापा इसलिए उधर जाते हैं क्योंकि उन्हें काम पर जाना होता है। माँ बेटी में रोजाना यही बातें हुआ करती थी, इसी बात पर बहस हुआ करती थी। वहाँ एक सुरंगनुमा रास्ता था। छोटू के पापा उसी रास्ते से काम पर जाया करते थे। आम लोगों के लिए उधर जाना मना था। कुछ चुनिंदा लोग ही उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। एक दिन की बात है, वह दिन छुट्टी का दिन था। छोटू के पापा आराम कर रहे थे। छोटू ने नजर बचाकर सिक्योरिटी पास ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वह पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे बसी थी। जो सुरंग थी उसके रास्ते में दिए जल रहे थे। दरवाजे के पास एक जगह थी जिसे खांचा कहते हैं। हाँ, तो हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम पाठ को भी रोचक बना सकते हैं, उसमें भी कहानी का पुट ला सकते हैं, उसमें भी हम ऐसा कैरेक्टर बना हुआ नहीं, लेकिन टीचर और बच्चों के बीच में जो हमने संवाद रखा, कन्वर्सेशन रखा, उससे बच्चे के मन की प्रश्न वहां पे आ रहे हैं। उसे लगेगा कि ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है यही तो मेरे मन में भी आ रहा था, मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि वो लोग मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे क्यों रहा करते थे। तो ये सारी चीजों को एक टीचर के हैसियत से हमने सोचा और उसे कहानी का रूप दिया है। तो मुक्ता मैम, अगर टीचर्स इसको भी हटा दो मोनिका, अगर टीचर्स के कुछ क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले लें, वरना हम ग्रामर का एक दूसरी स्टोरी भी शुरू कर सकते हैं। प्रीति मैम, व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो देखिए। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक, मुझे नहीं दिख रहा। में नहीं है, देयर इज अ व्हाट्सएप ठीक है, तो मैं एक और कहानी बताना चाहूंगी।
सबसे जो ड्राई लेसन होता है बच्चों के लिए भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण होता है, जिसे हम उनको 4th में भी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा 5th में भी पढ़ाते हैं, 6th में भी पढ़ाते हैं, 7th में भी पढ़ाते हैं, 8th में भी पढ़ाते हैं। और जब 8th के बाद बच्चा निकलता है तो उससे पूछो है तो बस मेरी समझ में नहीं आता, वो यही कहता है क्योंकि वो बस याद कर लेता है। लेकिन मैं अगर जिस तरह बता रही हूँ इस तरह यदि आप सुनने की, यहाँ पे जितने लोग हैं सुनने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से भाषा, बोली, लिपि बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। तो मेरी कहानी ये है कि एक बार कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो कुछ एक ने एक दूसरे को धक्का मारा, उसने कहा तुमने मुझे पुश क्यों किया, मैं अभी चलता हूँ मम्मी से तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। तो उधर से व्याकरण जा रहा था, फिक्शन है, तो व्याकरण जब जा रहे थे उधर से तो व्याकरण खड़े हो गए, बोले क्या कहा तुमने, क्या कहा? तो उसने कहा देखिए पिताजी ये मुझे पुश कर रहा है, मैं इसकी कंप्लेन लेके पापा के मम्मी के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ तुम्हारी माँ से बात करने। तो व्याकरण गए भाषा से बात करने। तो बच्चे बोलते हैं मैम व्याकरण और जो भाषा है वो हस्बैंड वाइफ है। मैंने कहा अरे नहीं, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये सिर्फ सोच की बात है, इसको हमने सोच का आकार दिया। तो वो गए भाषा के पास। अच्छा, प्रायः ऐसा होता है कि माँ परिवार में बहुत उदार होती है, बच्चों की कमियां भी छिपा लेती है। बच्चे के परिवार कोई मित्र आए हैं तो मैं पूछती हूँ बच्चों से कि अगर तुम्हारा मित्र आता तो मम्मी क्या कहती है, आओ बैठो, चॉकलेट लो, पानी पियो, कुछ खाओ पियो। तो बच्चे बोलते हैं हाँ। तो मैंने कहा और जब पापा आते हैं तो तुम लोग थोड़े से डर जाते हो? तो कुछ बच्चों के पापा नहीं डरा, उनसे नहीं डरते हैं, आजकल तो नहीं डरते, पर प्रायः पहले डर जाया करते थे बच्चे अपने पापा से। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो अब व्याकरण गया माँ के पास, और जब माँ के पास व्याकरण पहुंचे तो उन्होंने कहा देखो भाषा, मुझे तुम्हारे बच्चों की ये आदत पसंद नहीं है, वो या ना तो वो तुम्हारे हैं ना वो अपनी मौसी के हैं। फिर मैं बच्चों से बोलती है मौसी कहाँ से आते हैं? तो बच्चे सोचते रहते क्या है क्या, तो वो कुछ कुछ बोलते हैं, तो वो वही उनकी कल्पनाशीलता। तो मैं कहती हूँ कि वो व्याकरण कहता है कि या तो को वो तुम्हारे बन जाए या इंग्लिश के बन जाए, इंग्लिश मौसी है, ये इंग्लिश नहीं चलेगा। तो फिर माँ कहती है व्याकरण से, और मैं पूछती हूँ क्यों कहा व्याकरण ने ऐसा? क्योंकि व्याकरण का काम है भाषा को शुद्ध करना और नियम में बांधना। यही हम उनको रटाते रहते हैं, भाषा की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण भाषा को शुद्ध करता तथा नियमों में बांधता है। तो वही मैं कहती बच्चों से पूछूंगी, देखो उनका काम है कि भाषा को शुद्ध करना और नियम में रखना ताकि भाषा गलत ना हो जाए। लेकिन जो भाषा है हमारी हिंदी भाषा, उसमें अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं, फारसी के बहुत सारे शब्द हैं, उसमें पश्तो शब्द हैं। क्यों? क्योंकि भाषा बड़ी उदार है, उसने सबको, जैसे माँ सबको गले लगा लेती है वैसे भाषा ने सबको गले लगा लिया। फिर माँ कहती है व्याकरण से, अच्छा ठीक है आप जाइए, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी कि कैसे काम करना है। अगर मुझे भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण समझाना तो मैं इस तरह कहानी सुनाती हूँ। तो भाषा बुलाती है अरे मौखिक भाषा इधर आना, तो मौखिक भाषा दौड़ा रहता है, हाँ माँ बताइए। देखो बेटा, जब तुम बोलो तो शुद्ध बोलो, और जब तुम जब किसी से बात करो तो उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग मत करो। अच्छा, लिखित भाषा, लिखित भाषा अंगड़ाती हुई आती, हाँ मेरे तो हाथ दर्द हो जाते हैं। मैंने कहा तुम लोग लिखना होता तो तुम यही कहते हो ना, मम्मी मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। तो लिखित भाषा भी आई है, माँ क्या कहना है बताओ। तो माँ ने कहा देखो बेटा, जब लिखो तो शुद्ध लिखो। अभी व्याकरण आए थे और तुम्हारे पिता व्याकरण ने कहा है भाषा को शुद्ध रखना है, और उनका काम है कि भाषा को शुद्ध रखना, नियमों में बांधना। तो तुम भी जो है जब लिखो तब शुद्ध लिखो। वो बोलती माँ मैं थक जाती हूँ। तो माँ ने कहा देखो मैंने तुम्हारे लिए एक मदद के लिए रखी है ना लिपि। तो लिपि का काम क्या है? वो लिखने का तरीका है। फिर अंदर से रोता हुआ अरे कोई मुझे भी पूछ लो। तो माँ कहती अरे ये देखो, ये मेरा सांकेतिक भाषा सबसे पहले पैदा हुआ, लेकिन ये बड़ा ही नहीं हो रहा है। तो वो कहता मैं क्या करूं माँ? माँ कहती बेटा तुम अपने अंदर साहित्य की रचना शुरू करो। तो कहता अब मैंने शुरू कर दिया है। तो मैं बच्चों से बताती देखो अब सांकेतिक भाषा भी धीमे धीमे उसके ऊपर किताब आ रही है, ब्रेल आ रही है, वो उसमें लिख रहे हैं। सांकेतिक भाषा जो डफ एंड डम है वो बोल रहे हैं, उनके लिए किताबें बन रही, पर अभी वो उतनी विकसित नहीं हुई है जितनी
लिखित और मौखिक भाषा विकसित हुई है। फिर तब तक उन्हें व्याकरण चंद लौट आते हैं, वो बोलते सुनो इन दोनों को तो तुमने समझा दिया है, लेकिन अब जरा इनको भाषा तुम भी समझ जाओ कि तुम राजभाषा भी हो, राष्ट्रभाषा भी हो और बोली भी हो और उपभाषा भी हो, ये इन्हें समझा दो कैसे तुमने इतने लंबे सफर को पार किया। तो भाषा कहती हाँ हाँ मैं समझा दूंगी। तो भाषा जो है बोली से कहती और लिखित भाषा से कहती तुम हमारे बच्चे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो तो मैं भी बढ़ रही हूँ। तो देखो पहले मैं बोली थी, लेकिन मेरे अंदर जब साहित्य की रचना होने लगी तो मैं उपभाषा बन गई, और जब उपभाषा बन गई तो मैंने जो सरकार की मान्यता है कि एक कसौटी है, एक पैरामीटर है, उसको पार कर लिया तो मैं राष्ट्रभाषा बन गई। और उसके बाद मुझे राजभाषा का सम्मान मिल गया। तो मुझे राजभाषा का सम्मान 14 सितंबर 1949 को मिला। तो अब बताओ तुम्हें भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चे बोलते हाँ मेरी तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार मैं कहानियों में बच्चों को समझाना शुरू करती हूँ। मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो सोच रहे हैं कि छोटी क्लास का ही बता रहे हैं। मैं जल्दी से एक बता देती हूँ, संधि बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, संधि बच्चों के समझ में नहीं आता है। तो मैं उनको पूरे अल्फाबेट, पूरे वर्ण ऊपर लिखती हूँ, अ आ इ उ ऊ री, फिर नीचे ए ओ औ। मैं फिर आ में सर्कल बनाती हूँ। मैं बोलती यदि मैं 8वीं क्लास को पढ़ा रही हूँ तो मैं कहती हूँ ये 8वीं ए की दोस्ती 8वीं ए में हुई, फिर 8वीं बी की दोस्ती 8वीं बी में हुई, 8वीं सी की दोस्ती 8वीं सी में हुई। अब बताओ दोस्ती होगी तो क्या होगा, शोर होगा या शांति होगी? तो बच्चे बोलते शोर होगा। तो मैंने कहा आवाज ऊंची होगी कि नीची होगी? ऊंची होगी। तो बस जब अ और आ मिलते हैं तो आवाज ऊंची होती है, बड़ा आ बनता है। तो इस प्रकार मैं उसको कहानी का रूप देती रहती हूँ। ये है मेरा तरीका। मुक्ता मैम, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो प्लीज। एक प्रश्न पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे हैं कि स्पेलिंग एरर, बच्चे हिंदी लिखने में बहुत मिस्टेक करते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे कहानी के जरिए या किसी और टेक्निक के जरिए हम हिंदी के स्पेलिंग्स में करेक्शन करा सकते हैं बच्चों से। देखिए ऐसा है कि मैंने जो है सऊदी अरब में भी पढ़ाया, मैंने जम्मू में भी पढ़ाया और मैं खुद भी पढ़ी। और जो भी अध्यापक यहाँ जुड़े हैं उन सब ने भी देखा है कि जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ श्रुतलेख दिया जाता था, डिक्टेशन दिया जाता था। तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन ही एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जो बच्चों के स्पेलिंग एरर को खत्म करता है। क्योंकि आज का हम अगर ये सोचे कि 12 या 15 लेसन पढ़ा करके और उसमें जब हम रीडिंग लगा रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, तब तो बच्चा सुन नहीं रहा। जब बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब उसके दोस्त पढ़ते हैं तो उनमें कमियां निकालने के लिए बच्चा सुन रहा है, तो वो गलत सुन रहा है, तो वो गलत सुन रहा है तो गलत समझ रहा है। हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है कि जैसा हम बोलेंगे वैसा लिखेंगे। तो मैं जो करती थी मैं वो बता सकती हूँ, और मैंने ये बिल्कुल टेस्टेड है, हर जगह पे मैंने ये टेस्ट किया है। और मैं जो हूँ हर दिन क्लास के अंदर जाती थी। जब हमारी फिजिकल क्लास हो रही थी तो मैं क्लास में जाती थी, 5 शब्द, सिर्फ 5 शब्द लेसन के बीच में से जा करके मैं बोर्ड के ऊपर लिख, पहले तो मैं डिक्टेट करती थी और बच्चों से कहती थी, जैसे हमारी ये है हमारी कॉपी, इस कॉपी का लास्ट वाला यहाँ पर वो डेट डालते थे और 5 शब्द वो यहाँ लिखते थे। यहाँ डेट डाला और वो बिल्कुल तैयार बैठे होते थे और यहाँ पर वो 5 शब्द लिखते थे। फिर मैं बोर्ड के ऊपर जब सही शब्द लिखती थी तो वो उसका करेक्शन करते थे। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे करेक्शन करेंगे, हो सकता है 40 बच्चे में से 35 करें, 30 करें, पर वो 30 को देख करके 32 करेंगे, 35 करेंगे, 40 करेंगे और जरूर करते हैं। और जब वो करेक्शन करते हैं तो उनको बस यही कहना है, मैम आई गॉट ऑल करेक्ट, आई गॉट ऑल करेक्ट। अच्छा, उसमें कई उसे झूठ भी, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कीर्ति और उन्होंने कीर्ति लिखा, तो अगर मैंने उसको कीर्ति बोला और मैंने वहां पर तापर बड़ी की मात्रा और अदर र और तापर छोटी की मात्रा किया, तो वो धीमे से अपना कर भी लेंगे और बोलेंगे आई गॉट ऑल करेक्ट। बट उस समय उनको जो वो करते हैं, जो वो लिखते हैं, उस समय उनको जो याद रहता है वो हमेशा के लिए याद रहता है। और दूसरी एक चीज जो है, रेफ और पदेन में, यहाँ अगर हिंदी के टीचर हैं तो रेफ और पदेन में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं और टीचर उसको बहुत, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी टीचर उसको बहुत ही ड्राई तरीके से पढ़ाते हैं। मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ जब हम पिरामिड बनाते हैं, जब भी हम पिरामिड बनाते हैं
तो हमारे पिरामिड में सबसे नीचे सबसे मजबूत बच्चा होता है, और जो सबसे ऊपर सबसे कमजोर बच्चा होता है, और जो कमजोर चढ़ा होता है वो हिल रहा होता है, कहीं गिर ना पड़े ऐसे हिल रहा होता है। दिखता कौन है? ऊपर चढ़ा हुआ। छिपा कौन रहता है? नीचे वाला। मजबूत कौन है? नीचे वाला। तो जो कुछ भी मैं इसको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, जैसे ये है, अगर मैंने ये कहा ये है, तो यहां पर दिख क्या रहा है? क ज्यादा दिख रहा, लेकिन मजबूत ये है रा, क्योंकि ये नीचे से इसको पकड़ के गोद में बैठा हुआ है। जैसे पहले जब हम लिखते थे विद्या, तो हम, अब तो खैर ये बदल गया, ये आधा द हो गया और ये या हो गया। तो यहाँ पर ये जो या है ये दिख नहीं रहा है पूरा अच्छी तरह से, लेकिन यही जो 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 नीचे की तरफ है यही जो है पूरा शब्द है। जैसे हमने कहा, और जो ऊपर चढ़ा हुआ होता है, जैसे मैंने कहा ये जो ऊपर चढ़ा हुआ शब्द होता है, ये डर के मारे कांप रहा है। तो जब अगर ये डर के मारे कांप रहा है तो ये कैसा है, पूरा है कि आधा? तो बच्चे बोलते हैं आधा है। तो मैं उनको ये करके बताती हूँ, तो वो बच्चे कभी भी गलतियां नहीं करते हैं रा में, कि अगर वो रा, अगर ये देखिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये शब्द है रा। इसमें बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हा जो है वो पूरा है ना, ये हा के नीचे यहाँ जो, चूंकि ये रा इसको पकड़ के बैठा है तो दिख रहा है पूरा हा, जबकि ये रा जो है वो पूरा है, हा आधा है। तो ये है, तो इसको भी मैं कहानी के द्वारा इस तरह बता के जब समझाती हूँ तो बच्चों की समझ में आ जाता है। और कोई क्वेश्चन मैम? क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक पूरा सेशन जो है आपके साथ दोबारा लेना पड़ेगा। नहीं, अभी और भी है, मैं फिर मैं हाँ, छोटी सी क्लिपिंग और दिखाना चाहूंगी, जो कि बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्लास का मैंने दिखाया था। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं बहुत सारी अलग अलग चीजों को जो है जोड़ करके अपनी वीडियो बनाती हूँ। तो प्लॉटागान पे भी बनाती हूँ और भी बहुत सारे ऐप में लेती हूँ। तो मोनिका दिखाएंगी कि मैंने 8th क्लास के बनाया, मैंने 10th के लिए भी बनाया है। ये देखिए, पहले इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं जिसको आजकल लोग कहते हैं स्टूडेंट एजेंसी, मैं इस पे भी भरोसा करती हूँ। और मैंने इन बच्चों से कहा, बेटा एक पार्ट है बस की यात्रा, अब इसे तुम अपने हिसाब से एक्ट करो। और चूंकि आजकल इंटरनेट के ग्लिचेस होते रहते हैं, तो मैंने कहा कि बेटा आप जो है इसको रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि उस वक्त कोई सुने कोई ना सुन पाए, कोई एग्जिट हो जाए कोई एंट्री हो जाए, तो स्मूथ होना चाहिए। और मैंने इन बच्चों की बिल्कुल मदद नहीं की, और ये सारा कुछ इन बच्चों ने किया है। जो लोग 8th पढ़ाते हैं उनको जरूर अच्छा लगेगा। इस दिखा दो मोनिका। हाँ, आओ बैठो। क्या मैं पर बस वाला बस महान लेखक व्यंग्यकार श्री हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखी गई ये कहानी, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, जिसमें उन्होंने बस की दुर्व्यवस्था पर किया है करारा व्यंग्य। अब बिना विलंब किए अपनी कहानी को करते हैं आरंभ। हमारे इस आरंभ में हमारे साथ मैं यानी वंशिका, शिरीन, तिस्ता, ऋषिका, कायरा, रिद्धि और अभिषा हम सब जुड़े हैं। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बर्बाद मिलेगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। सुबह पर घर पहुंच जाएंगे और फिर तुम दोनों को तो सुबह काम पर भी हाजिर होना है, तो वापसी का ये रास्ता अपनाना अति आवश्यक है। समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, डाकिन। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। हाँ, एक मिनट, एक क्वेश्चन है मैम, यहाँ पे प्रश्न पूछा है किसी ने कि और की का अंतर कैसे स्पष्ट करें, और एक अनुस्वार और अनुनासिक का, दो मैंने शायद देखा क्वेश्चन। मैं अभी उसको, हाँ, अपठित गद्यांश अनुच्छेद लेखन में कैसे परिचित है, इसके लिए तो मुझे एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी अनुच्छेद लेखन के लिए, गद्यांश के लिए। लेकिन मैं अनुस्वार और अनुनासिक का बता देती हूँ। ये स्टार्ट माय वीडियो।
हाँ, इसको स्टॉप कर दो तो मैं बता दूं मोनिका। जो की और की का अंतर है प्रायः वो हम बोल के ही सीख सकते हैं, लेकिन जब एक छोटा वाक्य या दो बड़े वाक्य खत्म हो जाते हैं और एक वाक्य खत्म हो गया, दूसरा वाक्य शुरू होने वाला है, तो वहां पर उनको जोड़ने के लिए, कंजक्शन के लिए, उनको जोड़ने के लिए जो हम की का प्रयोग करते हैं वो छोटी की होती है। और जब हम नाउन के बाद, संज्ञा के बाद कोई शब्द जोड़ते हैं तो वहां पे बड़ी की होती है। लेकिन ये हम बड़े लोग जानते हैं, बच्चा सिर्फ सुन करके ही सीखता है। हाँ, वो बार बार कहने से सीख लेगा कि जब हम एक, देखो वाक्य पूरा हो गया, मैं जा रही हूँ और तुम हो कि बैठते ही नहीं हो, तो जब मैं जा रही हूँ तुम हो एक वाक्य हो गया, और कि वहां पर जोड़ने के लिए दो वाक्यों को, एक बड़े वाक्य को एक छोटे उपवाक्य को जोड़ने के लिए आता है। जो अनुस्वार और अनुनासिक है वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। अभी समय है ना मुक्ता मैम? इतने क्वेश्चंस है, मतलब पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, लेकिन मैं अनुस्वार और अनुनासिक में बता दूं। पहले मैं जब देखिए, पहली बात तो हमें बोलकर देखना होता है। जो अनुस्वार होता है वो हमेशा, जैसे बंदर, बंदर, बन, ब के बाद आधा न आ रहा है। जैसे हंस, जब स्वर से अलग न की या मां की ध्वनि आती है तो वो अनुस्वार होता है। जब चिपक कर आती है, जैसे आंचल, आंचल, तो वो अनुनासिक होती है। अनुनासिक। जब कभी भी आप, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप देखिएगा, आप इस बात को अपने आप करके देखिएगा। जब हम बोलेंगे जैसे संगम, सा के बाद गम, अलग ध्वनि आ रही है, अंगा की ध्वनि अलग आ रही है। जैसे हम बोले संबंध, तो स के बाद म की ध्वनि अलग आ रही है और ब के बाद न की ध्वनि अलग आ रही है। तो ये सारे अनुस्वार होते हैं। और जब चिपक के आता है, जैसे हंसना, हाँ चिपक के आ रहा है, इसमें हंसना नहीं कह रहे। जब ध्वनि चिपक कर आएगी तो अनुनासिक होगी, और जब अलग होकर के आएगी तो अनुस्वार होगी। मेरे ख्याल से ये इन लोगों को ये एक्सरसाइज ठीक लगेगी। जी जी बिल्कुल ठीक है ना। तो अब हम एक छोटी सी क्लिपिंग और दिखा करके फिर हम छोटा सा आपको एक छोटे सा डेमोन्स्ट्रेशन और देना चाहेंगे, फिर खत्म कर देंगे। लाख की चूड़ियां दिखा देते हैं, बस बहुत छोटा सा हम दिखाएंगे। बस वाला बस। लाख की चूड़ियां पाठ श्री कामता प्रसाद जी द्वारा लिखा बड़ा ही सुंदर पाठ है। पाठ आरंभ करने से पहले ये जान ले कि लाख क्या है, क्योंकि पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां। तो बच्चों, लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसे विशेष प्रकार के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। इन पेड़ों में एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जिसके द्वारा बनाई गई वस्तु को निकालकर विशेष प्रक्रिया द्वारा लाख बनाया जाता है। यह थी लाख के उत्पादन की बात। तो अब आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ, जहाँ ये है लेखक के मामा का गांव। जब वहां पर लेखक की मुलाकात बदलू से हुई, जो लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। मामा के गांव का होने के कारण लेखक को चाहिए कि उसे मामा कहकर बुलाए, पर गांव के बच्चे उसे। हाँ, तो ये था हमारा जो है, इसको हटा दो, ये था हमारा छोटा सा क्लिपिंग की लाख की चूड़ियां हमने पढ़ा दिया। पर पाठ से अलग, पाठ से बाहर, पाठ से इतर भी बहुत सारे प्रश्न होते। बच्चे को लाख की चूड़ियां मतलब 1 लाख का खरीदा चूड़ी, वो तो यही सोचेगा। तो अब अगर हमने उसको ये बता दिया लाख, वो जो सील होता है, तो वो सोचता है कि सील क्या होता है, कहाँ से आता, क्या प्लास्टिक है। तो अगर हमने थोड़ा सा अलग जाकर के एक कहानी के रूप में बना करके दे दिया तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अब हम छोटी सी एक मैम झलक बता देते हैं। ज्यादातर कहानी कहने की कला क्या होती है। कहानी कहना, लोग कहते हैं कि कहानी लिखना और कहानी कहना एक साधना है, और साधना का मतलब ये है, जैसे संगीत साधा जाता है। जब हम किसी आर्टिस्ट से कहेंगे कि आप एक लाइन खींचो,
तो वो उसमें आर्ट होता है और हमारी वो लाइन होती है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी साधना की है। तो वैसे ही कहानी कहने में भी हर दिन हमें खुद सोचना होगा कि हम कहानी को कैसे कहें। कई बार ये भी हो सकता है कि हम कहानी को उसकी तरह कहें जैसे वो होती है, कहानी के बीच में मैं उसका नाम भूले, इस वक्त बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहा। तो खैर, और कहानी में जो होता है सिर्फ कहानी कहने में बच्चों को रोचक है, उसमें बीच में कविता डाल दिया। अब चूंकि मैं गा नहीं सकती हूँ, जो गा सकते हैं वो उसमें गीत डाल दे, संगीत डाल दे, तो वो बच्चों के मन को आती भा जाती और बच्चों को संगीत के द्वारा याद रहती है। तो मैंने जो है अभी आप लोगों को दिखाया था कि भाई मैंने वो कर रखा है, विशेषण के बारे में बता रखा है। वैसे ही मैंने जो है सर्वनाम के बारे में भी सोचा था कि वो बताऊंगी। एक मिनट, ये कहाँ चला गया मेरा। श्रद्धा मैम, आप अपने पॉडकास्ट और यूट्यूब के लिंक चैट बॉक्स में दे सकते हैं, अगर मोनिका आप हेल्प कर सकते हैं, ताकि पार्टिसिपेंट यूट्यूब लिंक। पोस्टेड, ओके, हाँ, तो उसमें मिलता रहेगा। पर जैसे कविता, हम कोई भी कहानी शुरू करने वाले तो चलो सुने भाई अपनी कहानी, चलो सुने भाई अपनी कहानी, बच्चों के साथ ताली बजाने। कौन सी कहानी? वही पुरानी। नहीं 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 नहीं, ये दादी नानी वाली कहानी नहीं है, ये है नई कहानी जो हमने बनाई और हम सुनाते हैं सर्वनाम की कहानी। तो इस तरह से यदि हम बच्चों के साथ बात करेंगे तो वो कहानी सुनने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और नहीं तो वो कहानी सुनना नहीं चाहेंगे। अगर हम उनको बिल्कुल एक उसके तरीके से कहानी सुनाएंगे कि कहानी में ये हो रहा है, कहानी में वो हो रहा है, कहानी में, तो उनको मजा नहीं आता। और कहानी एक ऐसी चीज है जो कि हम नहीं कहते हैं पर वो कह देती है। यदि हमें ये कहना है बच्चे से कि झूठ नहीं बोलना है, तो हम बच्चे से कहेंगे झूठ नहीं बोलो, वो जरूर झूठ बोलेगा। और अगर हमने कहानी बना दी और हमने कहा देखो उस बच्चे ने झूठ बोला, उसको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो वो कभी नहीं झूठ बोलेगा। तो मैंने एक कहानी लिखी थी चंपू चुनमुन की और बंदर की, चंपू और चुनमुन की। चंपू हमारा बंदर है, चुनमुन हमारी जो है वो गिलहरी, बड़ी प्यारी सी गिलहरी है। और हमेशा हम लोग कहते हैं ना झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तो उस पे मैंने अपनी आवाज बदली। तो हम कहानी में अपनी आवाज भी बदल सकते हैं, वो मैं बता रहे हैं। चुनमुन पेड़ के ऊपर कूद रही थी, तब तक उसको आवाज सुनाई पड़ी, अरे मेरी पूंछ, अरे कोई मुझे बचाओ मेरी पूंछ। चुनमुन ने सोचा है ये तो चुनमुन की चंपू की आवाज लग रही है। तो वो उछलती कूदती पहुंची और वहां जाके क्या देखती, चंपू की तो पूंछ डाली में फंसी हुई है। वो परेशान हो गई। उसने कहा चंपू चंपू थोड़ा शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही कूदते रहोगे तो तुम्हारी तो पूंछ टूट जाएगी, फिर तो तुम पूंछ कटा बंदर कहलाओगे। तो चंपू जोर से रोया, बोला अरे नहीं नहीं, मुझे पूंछ कटा बंदर नहीं कहलाना है। तो इस तरह से हम अपनी आवाज को बदल देंगे तो बच्चे को सुनने में मजा आता है। ये भी कहानी मैंने अपने YouTube में डाल रखी है मैम, तो इसलिए पूरा नहीं सुनाती क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा सेशन। खत्म करें? Thank you so much. There is so much to learn from you, and I think all participants, they have the gist that how it's not only a particular story but the style, how the technique which ma'am has shared. ma'am ने जैसे बताया कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे आप कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, उसके आगे और पीछे, किताब में तो जो है सो है, उसके आगे और पीछे की जब थोड़ी सी कुछ व्याख्या बताएंगे। आपको मैं बता दूं, मैं एक बार श्रद्धा मैम से पूछ रही थी किसी इनके पॉडकास्ट होते हुए, दोनों आवाज आपकी है? तो मैम ने कहा नहीं, दो नहीं, इसमें 3 आवाज है, तीनों मेरी हैं। और फिर मैंने कहा अच्छा ये सब लेडीज की फीमेल आवाज में आप 2-3 बार वेरिएशन देती है? तो मैम ने बताया नहीं, मैं जानवर की भी निकाल लेती हूँ, मैं लड़कों की भी निकाल लेती हूँ। सो दैट्स द थिंग व्हिच आई एक्चुअली लाइक्ड वेरी मच, एंड दैट वाज अ पॉइंट for me when I was dealing with my granddaughter. There are so many things we can, it's not aping, but it's the inspiration which we have received from ma'am कि किस तरीके से हम अपने लेसन को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, और बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो रिटेन कर सकते हैं। बहुत सारी
किताबों के कॉन्सेप्ट के लेसन्स के अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज स्टोरीज के थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं। श्रद्धा मैम, थैंक यू सो मच। thoroughly enjoyed the session. So आज अशोक सर आपको कंक्लूड करना है ये लेसन। आई थिंक पहली बार कर रहे हैं मैम का लेसन। देखिए, ये आपने खुद भी बहुत बड़ा रिस्क लिया है और मुझे भी आप रिस्क लेने को कह रही हैं कि इस लेसन को कॉन्क्लूड तो मैं नहीं कह सकता। ये एक बहुत ही सुंदर, मार्मिक, दिल को छूने वाला और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, केवल हिंदी के अध्यापकों के लिए नहीं। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। संभवतः श्रद्धा जी जैसा शिक्षक मुझे हिंदी का नहीं मिला, नहीं तो मैं हिंदी ही पढ़ा होता अगर इस तरह से चीजें पढ़ाई गई होती तो अब इसलिए कंक्लूजन नहीं करूंगा, बधाई देता हूँ। और इसमें आपने शीर्षक तो रखा था स्टोरी टेलिंग के लिए, लेकिन कुल मिला जुला कर जो आज का अनुभव है वो पेडागोजी के ऊपर हो गया, अगर आप सच पूछें तो दिस वाज अ क्लास ऑन पेडागोजी। और आप किसी भी विषय को पढ़ाएं, लैंग्वेज में तो खासतौर से लैंग्वेज के लिए ज्यादा रेलेवेंट था, आई एग्री, लेकिन एक जो पेडागोजिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं कि आप अपने आप को किस हद तक डाइव कर रहे हैं, जिसको हम आज की मॉडर्न भाषा में डीप डाइव कहते हैं। तो एक तो ये है कि आप सरफेस पे हैं, आप चीजों को लेकर के नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक है डीप डाइव, और कितना कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डीप डाइव से निकलती हैं। तो उसमें बच्चों की जरूरतें, उनके ख्यालात, उनका मूड है ना, और उनकी सहभागिता, ये सारी चीजें बड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती। तो इसीलिए एक शिक्षक की जो भूमिका है अपने अपने स्थान पे, एक पेडागोजी में आप क्या इनोवेशंस लाते, तो वो जितना ही ज्यादा आप इनोवेशन लाएंगे उतना ही ज्यादा वो इंटरैक्टिव हो जाएगी, उतना ही ज्यादा वो रीच आउट करने लगेगी बच्चों। तो ये बड़ा आवश्यक है। तो ये इन्हीं सब चीजों के एक दो झलकियां हम सभी लोगों को आज देखने का सौभाग्य मिला। जहां तक कहानियों का मतलब, आपने देखिए जेके राउलिंग ने जो हैरी पॉटर के बाद उन्होंने कहा था कि कहानी तो वही है जो कि पाठक को ट्रांसपोर्ट कर दे एक जगह से दूसरी जगह। तो स्टोरी एंड स्टोरी टेलिंग इज अ व्हीकल टू डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। तो मैं तो समझता हूँ कि आज का जो ये हुआ, हम सभी लोग ट्रांसपोर्टेड हैं ऑलरेडी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। अब एक दूसरा सेशन होना चाहिए कि वहां से हम फिर अपनी जगह आ जाएं, नहीं तो हम अपनी जगह से बेदखल हो जाएं। तो इसलिए ग्रेट स्टोरीज, किसी ने कहा है, हैपन टू दोज पीपल हु कैन टेल देम। तो कहानी ग्रेट तब होती है जब आप उसको कहने की क्षमता और कहने की कला, ये अगर विकसित हो जाए तो वो स्टोरीज ग्रेट हो जाती। और इसीलिए बच्चों को खासतौर से भाषा के उसमें जो है, मैं जो लैंग्वेज टीचर्स हैं उनकी बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर लैंग्वेज में। क्योंकि आप देखिए, जो भी बच्चा नई लैंग्वेज सीखता है, आप समझिए कि एक तरह से वो बड़ी अननोन टेरिटरी होती है, उस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड लैंग्वेज टीचर बिकम्स ए टूर गाइड। आप देखें ना, टूर गाइड कैसे एक खंडहर को भी वो क्या बना के आपको बता देता है कि नहीं। और कुछ लोगों को तो उस खंडहर से प्यार हो जाता है, फिर वहां फोटोग्राफी करने लगते हैं, फिर वहां पिकनिक करने जाएंगे, फिर उसकी बातें करेंगे, फिर वो हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो लैंग्वेज इज अननोन टेरिटरी एंड लैंग्वेज टीचर इज ए टूर गाइड। और वो टूर गाइड उस बच्चे को उस टेरिटरी में ले जा करके उसके कम्युनिकेशन को, उसके इमोशंस को, उसकी उस भाषा को लेकर के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है जब वो भाषा सीख लेता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान। और मैं समझता हूँ कि आज का जो ये सेशन रहा है लैंग्वेज टीचर्स के लिए खासतौर से, लेकिन सभी शिक्षकों के लिए, कि आप अपने लेसन को कितना रोचक बनाएं। जितना रोचक बनाएंगे वो लेसन उतना ही प्रभावशाली होगा
और कहानियों का तो क्या कहना, आप देखिए ना आजकल अफगानिस्तान की इतनी बातें हो रही हैं, सभी लोगों को काबुली वाला कहानी फिर से याद आ गई कि नहीं? इससे याद आ और जो हमारे मन पे वो प्रभाव छोड़ चुकी है वो कभी मिटने वाला नहीं है। ईदगाह की कहानी कभी वो मिटने वाला नहीं है, पंचतंत्र की कहानियां वो कभी निकल नहीं सकती हमारे दिमाग से। तो इसलिए कहानियों का भी मतलब है, शिक्षक की कक्षा में जो भूमिका है उसका मतलब है, भाषा विज्ञान और भाषा एक जो कल्चरल कॉम्पिटेंसी ऑफ कम्युनिकेशन हम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सब कुछ सीख लिया बट इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट आवरसेल्व्स तो वो भी कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी रह जाती है। सो कंग्रेचुलेशंस टू श्रद्धा जी, कंग्रेचुलेशंस टू यू मुक्ता जी for organizing this. Samurja is doing a great job. My congratulations and thank you for inviting me. Thank you so much. I thoroughly agree. Sir, जब मैं 6th क्लास में थी तो उस टाइम हमारी मैम ने हमें होमी जहांगीर भाभा की एक स्टोरी सुनाई जी। और 8th स्टैंडर्ड में हाउ आर्किमिडीज बिकेम आर्किमिडीज, देयर वाज अ स्टोरी बिहाइंड इट, तो उसके चलते वो आज भी दिमाग में है। और जब श्रद्धा मैम सेशन ले रही थी, आपने बिल्कुल सही कहा, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ सर, इकोनॉमिक्स पे किताबें भी लिखी और कोशिश करती हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ाना कंटिन्यू रखूं। तो बहुत सारी चीजें जब मैम बता रही थी, they were going on in my mind how this particular chapter or this particular topic I can revive or I can inspire the students by adding some flavor of music or stories or bringing some character, जो गिलहरी वाला एक character मैम ने दिखाया बहुत ही खूबसूरत, और voice modulation. Thank you so much Shraddha ma'am, and thank you Ashok sir for summing up the total crux of the session. It was really great, inspiring and thoroughly engaging. बहुत मजा आया। एक चीज रह गई थी मुक्ता जी, इसमें एक कहानी जो श्रद्धा जी ने दिखाई थी, कहानी नहीं थी, वो साहिर लुधियानवी की जो कविता थी, तो उसमें देखिए उसमें आवाज जो इन्होंने दी थी अपने एक कलीग और फ्रेंड की आवाज थी वो, तो वो भी एक है कि आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं जी। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर वो सारी कलाएं हों, तो कोलैबोरेशन इज ऑल्सो एक कला, और आप अपने लेसन को प्रभावशाली बनाने के लिए वो कोलैबोरेशन कर रही है तो और भी अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। तो सो दैट इज आल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ गुड टीचिंग। मन नहीं कर रहा लेसन सेशन को कंक्लूड करने का, लेकिन समय भी परमिट नहीं कर रहा है कि हम देर तक इसको खींचे, क्योंकि बहुत सारी टीचर्स हैं और मैं जानती हूँ कि घर में भी बहुत सारा काम है, तो करना पड़ेगा। So we'll conclude here. I request Kriti ma'am to kindly propose the formal vote of thanks. Thank you, ma'am. Inside each of us is a natural born storyteller waiting to be released. Good evening to one and all present here. I would like to express my gratitude to respected Shraddha Pandey ma'am for deliberating on the topic. With your expert guidance, we learned that stories should be age appropriate. Second, story can be shared with children anytime. One can add a lot of music with signature gestures to your story to attract children. Prefer audiobooks rather than video, just to reduce their screen time. Dictations will help in improving the spellings of the children. I also extend my gratitude to Honorable Dr. Ashok Pandey sir for taking out time from their busy schedule to grace the event and sharing your thoughts. Also, I would like to thank Dr. Mukta Mishra ma'am for providing immense support to make this episode another success. I must thank the Samurja team and Monica Khanduja ma'am for working hard for the past few days to make this talk show again another successful event. Thank you, everyone. Namaskar. Thank you, and thank you, Kriti, for the wonderful video which you have added in the introduction. I really liked it. And thank you, Kriti, for nicely summing up and bringing out some of the very important points of the talk. Thank you. Namaskar. Thank you very much, Mukta ji. Thank you, thank Monica, and thank you, participants. All the best. Thank you. Thank you.